ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وقت بہت تیز رفتاری سے گزر رہا ہے، لیکن اس تیز رفتار وقت کے ساتھ انسان کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں کہیں نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ وقت کبھی رکتا نہیں اور نہ ہی کسی کا انتظار کرتا ہے، پر وقت سے ایک گلہ ہے کہ یہ ساتھ کیوں لے کر نہیں چلتا۔ اس دنیا میں کئی لوگ پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ پیسے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ اپنی قسمت کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ ان سب میں میری زندگی کیسی ہے۔ ماں باپ نے اچھی تعلیم تو حاصل کروا دی، اور انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہی میری شادی بھی کروا دی۔ میری شادی بھی میرے چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا، لیکن اتنی تعلیم حاصل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی اچھی نوکری مل سکی، نہ اپنے ماں باپ اپنے گھر والوں کو اچھی زندگی دے سکا۔ کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا، ایسی اعلیٰ تعلیم کا جو گھر والوں کی پریشانیوں کے لیے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ میرے ماں باپ نے بہت توجہ، پیار اور سفید پوشی سے میری تربیت کی اور اچھی تعلیم کے لیے کالج اور یونیورسٹی تک بھیجا، یہاں تک کہ میں نے ماسٹرز کر لیا تھا، لیکن ماسٹر کرنے کے باوجود مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ماسٹرز کرنے کے باوجود مجھے ایک چھوٹی سی نوکری ملی جو کہ ایک قسطوں والی دکان تھی، اور وہاں پر مجھے قسطوں کی ریکوری کے لیے رکھا گیا تھا، اور تنخواہ بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ 15,000 ماہانہ تنخواہ کے لیے انٹرویو دینا پڑا۔ دل میں خیال آیا نہ جانے کون لوگ ہیں جو ماسٹر کرنے کے بعد بڑے بڑے آفیسز میں اے سی پلانٹ میں بیٹھ کر نوکری کرتے ہیں، اور ایک میں ہوں جسے سارا دن موٹر سائیکل پر گھومنا پڑے گا، اور وہ لوگ مزے سے اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ خیر، میں گھر آیا تو میری امی نے پوچھا، احمد بیٹا کیا بنا، کوئی نوکری ملی؟ میں نے کہا جی امی، آج ایک انٹرویو دے کر آیا ہوں، امید ہے کہ مجھے سلیکٹ کر لیں گے۔ امی نے کہا کوئی بھی نوکری چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، نوکری تو کوئی بھی ہو، بس تم دل لگا کر کام کرنا، کامیابی خود بخود تمہیں مل جائے گی۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ میں نہایا اور باہر دوستوں میں چلا گیا، موبائل چارجنگ پر لگا دیا۔ میرے جانے کے بعد قسطوں والی دکان سے فون آیا۔ فون امی نے اٹھایا اور ان لوگوں نے امی سے کہا کہ ہمیں ریکوری آفیسر کی ضرورت ہے۔ امی بہت خوش ہوئیں اور فون بند کر دیا، جبکہ میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی گھر آیا امی نے بتایا کہ کسی قسطوں والی دکان سے فون آیا تھا اور انہیں کسی افسر کی ضرورت ہے، یہ افسر والی نوکری وہ تمہیں دینا چاہتے ہیں، تم ضرور کر لینا۔ میں سمجھ گیا کہ کس چیز کی نوکری ہے، لیکن امی کو کون سمجھا سکتا تھا۔ صبح ہوئی، امی نے ناشتہ بنایا، میں اپنی جاب کے پہلے دن وقت پر دکان پر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر مجھے انہوں نے میرا کام سمجھایا۔ کام تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے سمجھانے سے یہ ہوا کہ کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی جس کے مطابق میں نے ان کو کال کر کے ان کے گھر پہنچنا تھا۔ میں نے اپنے باس سے کہا کہ میرے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب تک تم کام کرو گے تب یہ میرے والی استعمال کر سکتے ہو۔ میں ان کی بائک لے کر نکل گیا اور 2-3 گھنٹے پھرنے کے بعد واپس دکان پر آ گیا اور ریکوری کے پیسے اپنے باس کو دیے۔ باس بہت خوش ہوئے کہ پہلے ہی دن لڑکے نے کچھ ریکوری کر لی ہے۔ باس نے کہا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس لیے اب یہ کام تم ہی کرو گے۔ باس نے ایک دوسرے لڑکے سے کہا کہ جاؤ احمد کے لیے کھانا اور چائے لے کر آؤ۔ وہ لڑکا گیا اور کھانا اور چائے لے آیا۔ پہلے تو میں نے کھانے سے انکار کیا، لیکن بریانی شکل سے اتنی مزے کی لگ رہی تھی کہ میں مزید انکار نہیں کر سکا، اور دھوپ میں پھرنے سے بھوک اور پیاس دونوں لگ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، پانی پیا اور پھر باس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ 4-5 بجے کا وقت ہوا تو میں نے کہا کہ اب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ باس نے کہا ٹھیک ہے، تم میری موٹر سائیکل لے جاؤ اور کل وقت پر آ جانا، اور ایسے ہی باقی گھر بھی ڈھونڈ لینا اور ریکوری کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔
मैं मोटरसाइकिल पर घर आ गया। जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल को अपने दरवाजे के आगे खड़ा किया और अम्मी ने मुझे मोटरसाइकिल से उतरते देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा खुश हुईं। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मैंने कहाँ से ली है। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। अम्मी तब भी बहुत खुश हुईं कि चलो काम जैसा भी है, मोटरसाइकिल तो पहले दिन ही मिल गई है। मेरे अब्बू सब्जी की दुकान लगाया करते थे। मैं दुकान लगाने में और बंद करने में उनकी मदद किया करता था। अब्बू रात को आते हुए जो भी सब्जी दुकान पर बच जाती वो घर ले आते। अब्बू ने जैसे ही मोटरसाइकिल सहन में देखी तो फौरन से कहने लगे, ये किसकी है और हमारे सहन में क्या कर रही है। अम्मी ने बताया कि अहमद को उसकी दुकान वालों ने दी है। अब्बू ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, आज पहले दिन ही मेरे बेटे की तरक्की हो गई। अम्मी ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्बू मोटरसाइकिल को हाथ लगाकर देखने लगे। मैंने कहा, आप खाना खा लें, फिर हम बाहर चक्कर लगाने जाते हैं। अम्मी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तो बाइक पर जाऊंगी। अम्मी ने खाना लगाया, हम तीनों ने खाना खाया और फिर मैं, मेरे अब्बू और अम्मी मोटरसाइकिल पर बैठे। मैंने पूछा, आप लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे? अब्बू ने कहा, इसी खुशी में आज मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। हम आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। अम्मी और अब्बू दोनों बहुत खुश हो रहे थे। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग घर आ गए। अम्मी ने मोटरसाइकिल पर चादर डाल दी। सुबह भी उठने से पहले ही अम्मी ने मेरा नाश्ता तैयार कर दिया और मेरे कपड़े भी तैयार कर दिए थे। मैं उठते ही सीधा नहाने के लिए चला गया और नाश्ता किया और अपनी बाइक पर दुकान पर चला गया। दुकान पर जाने के बाद मेरे बॉस ने फिर मुझे कहा कि अहमद, जैसा तुमने कल काम किया था आज भी बिल्कुल वैसा ही करना। इस दुकान का एक लड़का विकी मुझसे जलने लगा। उसका मानना था कि बॉस अहमद को ज़्यादा तवज्जो और प्यार देने लगे हैं और मुझे तो कभी भी ऐसी तवज्जो नहीं दी, जबकि मैं पिछले कई साल से इनके पास काम कर रहा हूँ। विकी मुझसे मुसलसल हसद करता जा रहा था। बॉस ने कहा, आज तुम विकी को साथ ले जाओ, क्योंकि चंद घर रहते हैं जिनका एड्रेस विकी को पता है। हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ गए। विकी मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। रास्ते में विकी ने मुझसे कहा कि हमारे बॉस अच्छे नहीं हैं, ये पहले मेरे साथ भी ऐसे ही करते थे और तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। देखना, एक दिन मुझे भी इस काम से निकाल देंगे और फिर तुम्हें भी। मैंने कहा, इसमें क्या बुराई है? अगर हम ठीक काम नहीं करेंगे तो वो निकाल देंगे। हमें चाहिए कि हम अच्छा काम करें, तो फिर वो हमें क्यों निकालेंगे? लेकिन विकी का हसद मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। कभी कभार बॉस मुझे खुश होकर 500 रुपये देते और ये बात भी विकी को पसंद नहीं आई। मैंने चंद महीने उस दुकान पर काम किया और फिर उस दुकान से मेरा दाना पानी तब ख़त्म हुआ जब गर्मियों की शाम बॉस घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सीने में दर्द हुआ। बॉस ने मुझे फ़ोन किया। मैं जल्दी से उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाओ। मैं अस्पताल ले गया तो सारे डॉक्टर बॉस के इर्द गिर्द खड़े हो गए। इतनी देर में मैंने उनके घर वालों को कॉल कर दी। 5 से 10 मिनट में बॉस के घर वाले भी वहाँ आ गए और मेरे साथ खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं इनका वर्कर हूँ और इनके पास काम करता हूँ। डॉक्टर ने कहा, और बाकी सब कौन हैं? मैंने कहा, बाकी इनके घर वाले हैं। डॉक्टर ने उनकी बीवी से कहा कि ये मर चुके हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बॉस की बीवी रोने लगी और इस तरह उनकी दुकान बंद हो गई और मेरा भी उस दुकान पर लगा हुआ रिस्क ख़त्म हो गया और मैं फिर घर वापस बैठ गया। लेकिन बॉस की बीवी ने मुझसे मोटरसाइकिल वापस नहीं ली, जबकि मैंने उन्हें वापस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वो मुझसे नहीं ली और मुझे ही दे दी। बॉस की बीवी ने कहा कि वो अहमद को अपना बेटा मानने लगे थे। वो जब घर पर होते थे तो अहमद की बातें करते थे और कहते थे कि अगर कभी मेरा कोई बेटा होता तो बिल्कुल अहमद के जैसा होता। उनकी बीवी ने बताया कि तुम्हारे बॉस को तुम्हारी आदत बहुत पसंद थी, उन्हें तुम हर लिहाज से पसंद थे, बस हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते थे।
मैं बॉस की बीवी से मिलने के बाद वापस लौट रहा था कि विकी ने कहा, क्या बातें हुई? इतनी देर में मैंने बाइक स्टार्ट कर ली। विकी ने मुझसे कहा, वाह क्या बात है तुम्हारी, अभी भी मोटरसाइकिल तुम वापस करने आए थे और अब वापस लेकर जा रहे हो। लगता है दिल में बेईमानी आ गई है। मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया और दिल में सोचा, पढ़े लिखे और अनपढ़ में कुछ तो फ़र्क होता है। और फिर घर बैठ गया और नौकरी के लिए इधर उधर टकरे मारने लगा। तभी मेरे चचा मेरे घर आए और उन्होंने मेरे अब्बू से कहा, अकरम यार तुमने अहमद की शादी के बारे में क्या सोचा है? अब्बू ने कहा, अभी तो कुछ नहीं सोचा, अभी तो मेरा बेटा पढ़ाई मुकम्मल करके फ्री हुआ है। चाचू ने कहा, वो तो ठीक है, तुमने इसकी शादी का क्या सोचा है? अब्बू ने कहा, अभी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा क्योंकि अभी तक ये अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ। चाचू ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अरीबा की शादी अहमद से हो जाए। मैंने कहा, चचा आप क्या बात कर रहे हैं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। शादी करने के बाद मुझ पर कुछ जिम्मेदारियां मज़ीद बढ़ जाएंगी, जबकि मैं अभी तक अपने माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहा, जो उनका हक है वो उन्हें नहीं दे पा रहा, तो फिर मैं अरीबा की जिम्मेदारी किस तरह पूरी करूँगा? लेकिन चाचू ने कहा, हो सकता है अरीबा की किस्मत से तुम्हें मज़ीद और कुछ मिलने लग जाए। अम्मी ने कहा, तुम्हारे चचा ठीक कह रहे हैं, वैसे भी तो हमने कहीं ना कहीं तुम्हारी शादी करनी ही है, तो क्यों ना अपनी किसी बच्ची के साथ ही कर देते हैं। अरीबा अपनी बच्ची है क्योंकि लड़की बहुत अच्छी है और घर की ही देखी भाली है। चचा ने कहा, आप लोग मेरे घर आएं और मेरी बेटी का रिश्ता ले लें, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और मैं अपने इस फ़र्ज से मुबर्रा होना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा, ठीक है यार, फिर हम 2 दिन बाद आते हैं। अम्मी ने चचा को खाना दिया, चाय पी और वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं अम्मी अब्बू से कहने लगा कि आपने इतनी जल्दी हाँ क्यों कर दी है और कैसे? अब ये आप सब कैसे करेंगे? इस काम के लिए पैसा चाहिए। अम्मी ने कहा, रिश्ता खुद चल कर आया है, इनकार नहीं करना चाहिए। अब्बू ने कहा, तुम फिक्र मत करो, अगर हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं तो क्या हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते? मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी खुशी। 2 दिन बाद हम तीनों तैयार होकर बाइक पर बैठे और चचा की तरफ चले गए। उनके घर जाने के बाद सब हमें देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तो हमारे लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। हमारे उनके घर पहुंचने से पहले ही उस घर में हमारे काफ़ी रिश्तेदार जमा थे। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए हमारे ऊपर फूल फेंके गए और मेरी मोटरसाइकिल देखकर सब बहुत खुश हो रहे थे। फिर हमें अलग कमरे में बिठाया गया और खाने का एहतमाम किया हुआ था। हम सब ने खाना खाया। उसके बाद अब्बू, चाचू और तायाबू ने मिलकर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं खामोश बैठा रहा। कुछ देर बाद मेरे सामने अरीबा को लाया गया। मैंने अरीबा कुछ साल पहले देखी थी और आज देख रहा था। कुछ साल पहले से लेकर अब तक उसमें बहुत तब्दीली आई हुई थी। पहले ये इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत खूबसूरत थी। चचा ने मुझे कहा कि आज से ये तुम्हारी हुई और अब कोशिश करो कि जल्दी से शादी करके ले जाओ। मैं मुस्कुराने लगा। चचा ने कहा, मैंने अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दी है कि हर हाल में तुम्हारे साथ खुश रहेगी। अगर तुम इसे भूखा भी सुलाओगे तो ये तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहेगी और तुम्हारा हाथ मुकम्मल तौर पर बटाएगी। तुम्हें कभी नाराज़ नहीं करेगी और ना ही शिकायत का मौका देगी। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है। आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त मेरे पास नौकरी नहीं है। मेरे चचा ने कहा, कोई बात नहीं, नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो ये तुम्हारे साथ मिलकर नौकरी करेगी और तुम दोनों मिलकर अपना घर चलाना। मैं राज़ी हो गया। तभी मेरे ताया ने कहा, शादी की फ़िक्र नहीं करो, हम सब मिलकर तुम्हारी शादी करेंगे, क्योंकि तुम्हारा बाप और अरीबा का बाप दोनों मुझसे छोटे हैं और मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारे दादा दादी की जगह खड़ा होकर तुम दोनों की शादी करा दूं। मेरे अब्बू खुश हो गए और उन्होंने कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो इंतज़ाम अहमद की माँ ने पहले से ही किया हुआ है। ताया अब्बू ने कहा, बस फिर बात ख़त्म, तुम 15 दिन बाद निकाह के लिए आ जाना। मुझसे जो हो सकेगा मैं अपनी बेटी को देकर भेज दूंगा।
چچا نے کہا، بھائی جان آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے بچوں کے لیے اتنا سوچا۔ ہم گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد میری امی ابو اتنے خوش ہو رہے تھے کہ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی خوشی ہو رہی تھی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ میرے دل کو بہت سکون پہنچا رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے کہ شکر ہے ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے کا یہ فرض بھی ادا کر لیں گے، اور ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اتنا اچھا سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ امی نے کہا، دیکھا احمد، اسی میں اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ نے تمہارے تایا ابو کے دل میں رحم ڈال دیا اور انہوں نے یہ شادی کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا، جی امی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے جلد از جلد کوئی نوکری مل جائے۔ آخر مجھے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں کیشیئر کی نوکری مل گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کہیں مجھے سکون سے بیٹھ کر کرنے والا کام ملا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنا کام کرنے لگا۔ میرے امی ابو، تایا ابو اور چچا سب بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، دیکھا احمد، ہماری بیٹی کا نصیب، اسی کے نصیبوں سے تمہیں آج یہ نوکری ملی ہے۔ میں نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں ہر روز نوکری پر جاتا اور پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتا، جبکہ اس سٹور کے کئی لڑکے ایسے تھے جو مجھے ہیرا پھیری کرنے کے لیے کہتے، لیکن میں ان کی ایک بھی نہیں مانتا تھا اور پوری ایمانداری سے اپنا کام کرتا تھا۔ مجھے کام کرتے ہوئے 15 دن گزر گئے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ میرے تایا ابو نے میرے لیے شادی کا جوڑا بھیجا اور امی سے کہا کہ ایک جوڑا میں اریبہ کے لیے بھی خود ہی لایا ہوں اور اسے دے آیا ہوں۔ میں، ابو اور امی، ہم تینوں میرے دوست کی گاڑی میں میرے چچا کے گھر پہنچے۔ وہاں جا کر ہمارا اچھا استقبال کیا گیا۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ مجھے بہت عزت دی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چچا مولوی صاحب کو لے آئے اور میرے تایا ابو نے اپنی موجودگی میں گواہ بن کر میرا اور اریبہ کا نکاح کروا دیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ سب اریبہ کو مل کر رو رہے تھے اور میرے چچا کی تو وہ لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے چچا کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہے تھے۔ خیر، رخصتی ہو گئی، ہم چاروں گھر آ گئے۔ گھر میں نے تو کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اریبہ سے کہا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے استقبال کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکا، کیونکہ ابھی میری نئی نوکری ہے۔ جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں تمہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اریبہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ اریبہ نے کبھی بھی مجھے کسی چیز سے تنگ نہیں کیا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے میری ہر چیز کا خیال رکھتی، یہاں تک کہ میرے امی ابو کو بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ ایک دن مجھے گھر سے کال آئی۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا اور کام کر رہا تھا۔ میں نے کال سنی تو اریبہ کی کال تھی۔ اس نے کہا کہ آپ جلدی سے گھر آ جائیں، ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں ابھی اسپتال لے کر جانا پڑے گا اور میں اکیلی یہ کام نہیں کر سکتی اور نہ ہی امی یہ کام کر سکتی ہیں۔ آپ جلدی سے آ جائیں تاکہ ابو کو اسپتال لے جایا جائے۔ میں نے اپنے مینیجر سے بات کی اور پریشانی اور ہڑبڑاہٹ میں اس سے کہنے لگا کہ مجھے ابھی جانا پڑے گا، میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مینیجر نے کہا، تم ابھی نہیں جا سکتے، اپنا کام مکمل کر کے جاؤ۔ میں نے کہا، سر آپ میری مجبوری کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے ابھی اسپتال پہنچنا ہوگا، اگر زیادہ دیر ہو گئی تو میری ابو کی جان جا سکتی ہے۔ لیکن مینیجر نہیں مانا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم گئے تو کل سے نوکری پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے لیے تو میرے ابو کی زندگی زیادہ پیاری تھی، اسی لیے میں گھر آ گیا۔ ابو کو اسپتال لے کر گیا۔ جیسے ہی اسپتال داخل ہوا، سب ڈاکٹر میرے ابو کے ارد گرد کھڑے ہو گئے اور الگ الگ طریقے سے معائنہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے ابو کو فالج ہو گیا ہے۔ ویسے تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن فالج کی وجہ سے ان کا ایک ہاتھ پیر کام نہیں کر رہا۔ آہستہ آہستہ ادویات اور مالش کی وجہ سے پھر وہ کام کرنے لگ جائیں گے۔ میں ابو کو گھر لے آیا اور گھر لا کر ابو کے پاس بیٹھ گیا۔ اگلے دن میں صبح اٹھ کر کمرے میں ہی بیٹھا رہا۔ امی آئیں تو امی نے کہا، آج تم نے کام پر نہیں جانا؟ میں نے کہا، امی انہوں نے کل مجھے کہہ دیا تھا
कि अगर आज मैं गया तो कल मुझे आने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैं नहीं जा रहा, और अगर उन्होंने मुझे बुलाना ही होता तो कॉल ज़रूर कर देते। उन्होंने मुझे कॉल नहीं की, इसका मतलब है कि वो मुझे नौकरी पर नहीं रखना चाहते। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। ईद उल अज़हा करीब आ गई और अब्बू के बीमार होने की वजह से जो घर का निज़ाम चलता था वो दरहम बरहम हो गया। यहाँ तक कि भूख के लाले पड़ने लग गए। इसी हालात में अरीबा ने खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर खुशी तो बहुत हुई, लेकिन जान भी निकलती जा रही थी, क्योंकि अब्बू भी घर पर थे और मेरे पास कोई भी काम नहीं था, और मुझे घर चलाने के लिए और अब्बू की दवाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। तो फिर मुझे अरीबा ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं करीब के कुछ घरों में काम के लिए चली जाती हूँ और 2-3 घरों में काम ख़त्म करके घर आ जाया करूँगी। घर बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। मैंने इजाज़त दे दी, और मुझसे इजाज़त लेने से पहले ही अरीबा ने साथ वाली हमसाई से इस मामले में बात कर ली थी, और हमारी हमसाई उन घरों में पहले ही काम कर रही थी। अरीबा और किरण की पहले ही बहुत दोस्ती थी। उसने कहा कि अरीबा तुम कल से मेरे साथ चली जाना, वो तुम्हें अच्छा मुआवजा दे देंगी। अगले दिन सुबह उठकर साथ वाली किरण के साथ काम करने के लिए चली गई, और 2-3 घरों में काम करने के बाद वापस घर आ गई, और वापसी पर उसके हाथ में एक टिफ़िन था जिसमें उनके घर वालों का बचा हुआ रात का खाना था। अरीबा खाना घर ले आई और हमने मिलकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं दिल में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब तो मेरी बीवी भी माँ बनने वाली है और मैं इस हालत में उससे काम करने का कह रहा हूं। लेकिन मुझे अरीबा ने कहा फिक्र नहीं करें, ये दिन भी कट ही जाएंगे। तभी मेरे तायाबू के बेटे का फ़ोन आया और उसने कहा अहमद भाई क्या आप घर पर हो? मैंने कहा हाँ मैं घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही शकील भाई और अकील भाई आ गए। उन्होंने कहा हम अपने जानवर लेकर आए हैं और हम यहाँ की मंडी में बेचना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा क्या आप इस काम में हमारी मदद करेंगे? मैं खुशी खुशी तैयार हो गया कि ये तो सब अपने हैं और अपना ही काम है, इसमें कैसी आड़। शकील भाई ने कहा चलो चलें, बाहर हमारा जानवरों से भरा हुआ रेवड़ खड़ा है। मैंने कहा मैं अम्मी को बता कर आता हूँ। मैं अंदर गया और अम्मी को बताया कि भाई आए हैं और वो मुझे भी साथ चलने के लिए कह रहे हैं। अम्मी ने कहा तुम क्या उनके साथ सारा दिन ऐसे ही फिरते रहोगे, तुम रहने दो। लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी जाता हूँ, हो सकता है मुझे भी कोई खर्चा पानी दे दे। इतनी देर में अरीबा आ गई और मैंने उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ और इनके साथ ही वापस आऊँगा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि हमें वहाँ पर रात रहना पड़ेगी या हम ऐसे ही वापस आ जाएंगे। लेकिन मुझे अरीबा ने कहा कि आपके पास तो मोटरसाइकिल है, आप इसी पर वापस आ जाइएगा। मैंने कहा बस तुम अपना और अम्मी अब्बू का ख्याल रखना। अरीबा ने कहा आप खैर से जाएं। मैं चला गया। अभी ईद आने में 10 दिन थे, क्योंकि आज ही ईद का चांद निकला था। शकील भाई ने कहा कि हमें भी यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि जानवर बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कहा आप रात में चारपाई लगाकर अपने जानवर बांध दीजिएगा और सुबह के टाइम एक भाई ड्यूटी दे, रात को दूसरा भाई ड्यूटी दे, और मैं सुबह होते ही आप लोगों के पास आ जाया करूँगा। शकील भाई ने कहा तुम नहीं जा सकते, जानवर काफ़ी सारे हैं और ये मेरे और अकील के बस का काम नहीं है, तुम्हें भी हमारे साथ यहीं रहना पड़ेगा। मैं तो पहले ही उनके अब्बू के एहसानों के नीचे दबा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी करवाई थी, इसीलिए इनकार नहीं कर सका और उनके साथ यहीं गायें भेड़ें चराने लगा। मैंने 2 दिन के बाद घर पर कॉल की और अम्मी से बात हुई। मैंने अब्बू का पूछा। अम्मी ने कहा ठीक है, अब कुछ हाथ में हरकत आ गई है। और जब मैंने उनसे कहा कि अरीबा कहाँ है, मेरी बात करवा दें, तो अम्मी ने कहा अरीबा अभी तक घर नहीं आई। मैं परेशान हो गया कि ये लड़की कहाँ चली गई। अब तो वक्त बहुत हो गया है, शाम भी होने वाली है। मैंने कॉल बंद कर दी। 1 घंटे बाद घर से दोबारा कॉल आई। मैंने सुना तो अरीबा थी। मैंने उससे देर घर आने की वजह पूछी तो उसने कहा कि एक घर में छोटा सा फंक्शन था, तभी देर हुई, और उन्होंने आज लेट आने के लिए मुझे 5,000 रुपये भी दिए हैं।
मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कोशिश किया करो जल्दी घर आ जाओ, क्योंकि अम्मी अब्बू घर में अकेले होते हैं और तुम ही ने इन्हें संभालना है। अरीबा ने कहा आप कब तक वापस आएंगे? मैंने कहा ये लोग मुझे आने नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि 2-4 दिन तक तुम चले जाना। अरीबा ने कहा चले ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और फ़ोन बंद कर दिया। मैं यहाँ मंडी में अपने चचाजाद और तायाजाद के साथ पूरी मंडी में फिरता रहा। मेरी हालत बदल गई। मैंने कई दिन से कपड़े भी तब्दील नहीं किए और ना ही नहाया था। मेरे चेहरे की दाढ़ी और बाल लंबे हो गए थे। धूल मिट्टी और गंदगी से इस कदर बुरा हाल हो गया था कि अगर आईना देखता तो खुद को कभी ना पहचान सकता। खैर, मंडी में रश रहने लगा और हमारे भी काफ़ी जानवर बिक गए थे। मैं तो पहले ही यहाँ दिन गिन गिन कर गुजार रहा था। मैं चारपाई पर लेटा अपने घर वालों को याद कर रहा था और अरीबा की याद आने लगी थी कि किस तरह मेरे बगैर मेरे घर वालों को संभाल रही होगी। खैर, सुबह तो मैंने चले ही जाना है। एक बहुत खूबसूरत गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक आदमी निकला और उसने उतरकर गाड़ी की अगली सीट का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि उसमें से एक खूबसूरत औरत गाड़ी से बाहर निकली और उसने मंडी का सबसे खूबसूरत जानवर खरीद लिया। मैं उस औरत को देख ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा ये औरत अरीबा है। उस औरत ने जानवर के पैसे अदा किए और गाड़ी में बैठ गई और मैं उसे देखता ही रह गया और सकते में आ गया और वहीं बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। क्या ये सच है? और ये अगर अरीबा है तो ये गाड़ी में इस आदमी के साथ क्या कर रही है? मैंने सोचा घर फ़ोन करता हूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, सुबह तो घर जाना ही है, घर जाकर देखूंगा कि सारा माजरा क्या है। अब मेरा यहाँ एक पल भी नहीं गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह घर जाऊं। मेरा काम में दिल भी नहीं लग रहा था और ना ही कोई काम की तरफ तवज्जो थी। मैं परेशान हो गया। एक पल के लिए तो उस औरत को देखते ही मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं सोच रहा था कि ये अरीबा ने मेरे साथ क्या किया। ये तो मुझसे मोहब्बत के दावे करती थी और उसके बावजूद उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं जितना वक्त भी वहाँ रहा बेहद परेशान और अफसुर्दगी में रहा और सुबह का इंतज़ार करने लगा। आखिर दिन निकल ही आया और मैं सारी रात से जाग रहा था। मैंने शकील भाई से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए, मेरी हालत बिगड़ गई है। उन्होंने कहा बस 2-3 घंटे और रुक जाओ ताकि मैं थोड़ा आराम कर लूँ। इतनी देर तुम रुक जाओ? मैंने कहा कि अकील भाई हैं आपके पास, मुझे अम्मी और अब्बू याद आ रहे हैं, अब मुझसे और काम नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूँ। मैं ये कहकर वहाँ से बाहर निकल आया। शकील भाई ने मुझे पीछे से आवाज़ दी कि अहमद रुको। मैंने आवाज़ सुनकर अनसुनी कर दी, वो इसलिए कि अगर उनको मुड़कर देख लूँगा तो फिर मुझे वापस बुला लेंगे। लेकिन मंडी में मौजूद एक आदमी ने मुझे कहा कि आपके भाई आपको पीछे बुला रहे हैं। आखिर मुझे मुड़ना ही पड़ गया तो शकील भाई ने मुझे इशारा किया, अपने पास बुलाया। मैं उधर वापस जाने लगा तो उन्होंने अपनी जेब में से मुझे 30,000 निकाल कर दिए और कहा लो, ये तुम्हारी 4 दिन की कमाई है जो तुमने हमारे साथ हमारे जानवर मिलकर बेचे हैं। मैंने पैसे जेब में डाले, शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ जाने लगा और मैंने कहा घर जाते हुए आप हमारे घर से होकर जाइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। शकील भाई ने कहा अच्छा, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर आऊँगा। मैं घर आ गया। घर आकर देखा तो अरीबा अभी घर ही थी और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे कोई सवाल करूं। मैं अम्मी अब्बू से मिला। अब्बू काफ़ी बेहतर हो गए थे और अरीबा ने घर के हालात भी संभाल लिए थे। मैंने कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने जिस तरह मेरे घर को और मेरे माँ बाप को संभाला है, मैं उसका एहसान नहीं चुका सकता। अरीबा ने कहा आप ये क्या बात कर रही हैं? घर आने के बाद मैं नहाया, कपड़े तब्दील किए, पैसे निकाल कर अम्मी को दिए। अम्मी ने कहा इन पर मेरा हक नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी का हक है। मैंने कहा इन पैसों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप रख लें। अम्मी ने कहा नहीं, तुम्हारे पीछे से अरीबा ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाला है, मुझे और तुम्हारे अब्बू को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी।
मैंने अम्मी के हाथ से पैसे पकड़े और अरीबा को दिए और कहा, ये लो अरीबा पैसे। अरीबा ने कहा, ये क्या है और कहाँ से आए हैं इतने सारे पैसे? मैंने कहा, ये अकील भाई ने दिए हैं। आप पहले ही 4 दिन के बाद आए हैं। मैंने कहा, क्या तुम नहीं जानती कि मेरा ऐसा लहजा क्यों है? अरीबा ने कहा, नहीं मैं नहीं जानती। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा कि क्या तुम वाकई नहीं जानती कि मेरा लहजा ऐसा क्यों है? अरीबा ने कहा, नहीं मैं नहीं जानती। मैं अंदर अपने कमरे में लेटा था। अरीबा ने कहा, आप आराम करें, मैं काम पर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है जाओ, मैंने कब रोका है और क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? तुम जो मर्जी करो। ये कहकर मैंने मुंह पर चादर ले ली। अरीबा घर से बाहर चली गई। 2 घंटे का कहकर गई थी, लेकिन 4 घंटे के बाद वापस आई। वापस आने के बाद उसने घर का खाना बनाया, अम्मी अब्बू को खिलाया, अब्बू को दवाई दी और अब्बू के हाथ और पाँव की मालिश की और कमरे में आ गई। उसने कमरे में आकर मुझे उठाया और कहा, अहमद उठें, खाना खा लें। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना। अरीबा ने बड़े प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में रखा और कहा कि मुझे आराम से बताएं, मसला क्या है? ऐसा क्या हुआ है जो आप मुझसे इतना अजीब सलूक कर रहे हैं? मैंने कहा, मैंने तुम्हें देख लिया था। अरीबा ने कहा, कहाँ देख लिया था? मैंने कहा, मैंने तुम्हें कल गाड़ी से उतरते हुए देख लिया था और तुमने उस मंडी का सबसे बड़ा जानवर खरीदा था। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरीबा ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपने मेरे लिए अपने जहन में बेवफाई तो नहीं सोच ली? मैंने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही है। अरीबा ने कहा, नहीं प्लीज़ अहमद, आप मेरी तरफ से बदगुमान ना होइएगा। जिसको आपने देखा था वो मैं ही थी, लेकिन जो आप समझ रहे थे वो हकीकत नहीं थी। मैं बताती हूँ हकीकत क्या है। आप मुझसे पूछिए तो सही। जिस घर में मैं काम करती हूँ वहाँ पर मियाँ बीवी हैं और दोनों ही बहुत बूढ़े हैं। मैं उन्हें अंकल और आंटी कहकर बुलाती हूँ, लेकिन वो दोनों मुझे अपनी बेटी मानते हैं। ईद करीब है, इसीलिए उन्होंने मुझे कुर्बानी का जानवर लेने के लिए भेजा था और जिस आदमी के साथ मैं गई थी वो उनका ड्राइवर था। मैं जानवर खुद कहाँ खरीद सकती हूँ, वो तो उनके लिए ख़रीदा था। आप ऐसा करें, आप मेरे साथ कल चलें, मैं आपको खुद उनसे मिलवाती हूँ, शायद आपकी बदगुमानी ख़त्म हो जाए। अरीबा रोने लगी और उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। उसके आंसुओं से सारी सच्चाई नज़र आ रही थी। मैं समझ गया कि ये सच कह रही है। मैंने कहा, तुमने तो बहुत कीमती कपड़े पहने हुए थे। अरीबा ने कहा, बिल्कुल, वो उनकी बेटी के थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी एक हादसे में मर चुकी है और मुझ में उन्हें अपनी बेटी नज़र आती है। उन्होंने मेरे लिए उसकी अलमारी खोली और कहा कि इसमें से एक सूट पहन लो और तुम हमारी बेटी बीनिश बनकर कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर लाओ, क्योंकि बीनिश को जानवर ख़रीदने का बहुत शौक़ था और वो ईद का चांद चढ़ते ही कुर्बानी का जानवर ख़रीदने की तैयारी कर लेती थी। इसलिए बस मैं वहाँ गई थी, लेकिन मैं तो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी। आपने मुझे कहाँ देखा था? मैंने कहा कि तुम्हारी गाड़ी जिस रेवड़ के आगे खड़ी थी वो रेवड़ हमारा ही था। अरीबा ने कहा, मेरी नज़रें तो वहाँ आपको तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे आप कहीं नज़र नहीं आए। मैंने कहा, नज़र कैसे आता? मुझे तो खुद को पता नहीं था कि मेरी शक्ल और हुलिया कैसा है। अरीबा उठी और मेरे लिए खाना लेकर आई और उसने कहा, आपकी वजह से मैं भी भूखी हूँ और आपका बच्चा भी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर देना। वो खाना लेकर आई और हम दोनों ने खाना खाया, पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारी रात बातें करते रहे और फिर सो गए। सुबह उठे तो अरीबा ने घर का काम किया, अम्मी अब्बू को नाश्ता बना कर दिया और मेरे लिए भी नाश्ता बनाया और मुझे उठाया। अहमद उठें, आपने आज मेरे साथ जाना है। मैंने कहा, नहीं तुम जाओ। अरीबा ने कहा, नहीं आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे नौकरी के लिए जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अरीबा ने कहा, आप नौकरी को छोड़ दें, अभी ईद है,
नौकरी ईद के बाद देखेंगे, आप मेरे साथ चलें। मैं नहा धोकर तैयार हो गया, नाश्ता किया और अरीबा के साथ चला गया। वहां जाकर देखा कि बहुत आलीशान एक कोठी थी और वहां दाखिल होते ही गार्ड ने दरवाज़ा खोला और अरीबा को सलाम किया। अरीबा कोठी के अंदर चली गई और सीधा आंटी के कमरे में गई तो देखा आंटी उसी का इंतज़ार कर रही थी। अरीबा ने कहा, आंटी मैं आपको अहमद से मिलवाना चाहती हूँ। आंटी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम ड्राइंग रूम में उसे बिठाओ और मुझे उधर ले जाओ। अरीबा ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद वो आंटी को व्हील चेयर पर बिठाकर वहाँ ले आई। मैंने आंटी को उठकर सलाम किया। उन्होंने कहा, बैठो बेटा, तुम उठ क्यों गए हो? अरीबा ने कहा, आंटी इन्होंने उस दिन मुझे मंडी में देख लिया था और इन्होंने अपने दिल में मेरे लिए बहुत बदगुमानी रख ली थी। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें सच बताएं। आंटी ने कहा कि मैं और तुम्हारे अंकल इस घर में अकेले रहते हैं। हमारी बेटी थी बीनिश, जो कि 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारी गई है, जिसकी वजह से मेरी भी ये हालत है। और अरीबा के घर आने से हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हमारी बीनिश वापस आ गई है। इसे देखते ही हम दोनों मियाँ बीवी में जान पड़ गई है। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। मैंने इसे कहा है कि मेरी बेटी की हर चीज़ तुम्हारी है, तुम अपने घर ले जाओ। लेकिन ये ऐसी लड़की है कि इसने एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और हम दोनों के कहने पर उसने एक दिन हमें सूट पहन कर दिखाया था, जिस पर तुम्हारे अंकल ने कहा था कि अब कुर्बानी का जानवर भी ले आओ। तो ये ड्राइवर के साथ गई थी। आंटी ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, जिसे देखकर तुम दोनों को यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। आज तक जो मैंने अरीबा को भी नहीं दिखाई, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटी को देख लो। मैंने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हमें आपकी बात पर यकीन है। लेकिन आंटी ने कहा, नहीं, तुम्हें देखनी पड़ेगी। और वैसे भी मुझे अरीबा ने बताया है कि तुमने मास्टर किया है, अब तुम अंकल के साथ उनके ऑफिस चले जाया करना, हमें तुम्हारी शक्ल में एक बेटा भी मिल जाएगा। मैंने अरीबा से कहा कि मुझे उस तरफ ले चलो। अरीबा वहाँ लेकर गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरे की लाइट जलाई तो ये देखकर हम दोनों मियाँ बीवी परेशान रह गए और चकरा गए, क्योंकि वो तस्वीरें बिल्कुल अरीबा की थीं और वो शक्ल हूबहू अरीबा की थी। आंटी वो देखकर रोने लगी और उन्होंने कहा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम इस घर की काम वाली नहीं हो, बल्कि इस घर की मालकिन हो और हमारे सामने तुम मालकिन की तरह रहा करो। तुम्हें देखकर हमें सुकून मिलता है। काश कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास, मेरे सामने रहो। मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे सास ससुर रहते हैं। आंटी ने कहा, तो तुम उन्हें भी ले आओ, ये घर बहुत बड़ा है और मैं हर वक्त तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम इस बारे में कुछ सोच लो। अहमद ने कहा, अच्छा मैं घर जाता हूँ। आंटी ने कहा, हाँ अहमद बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अब से तुम भी यहीं रहोगे, क्योंकि तुम मेरी बीनिश के शौहर हो और ये सब कुछ तुम्हारा ही है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे सब्र का मुझे ऐसा फल मिलेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।